Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, hello, data and skill explorers. Welcome to DevK Learner, a bit forward daily. Today we are going to explore manipulating dates. Step 2 of our working with data series. So that is this one. So in this session, we will learn how to add or subtract days, months and years in step by step ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को तुरंत अपने रियल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकें. If you are new to my channel, make sure to subscribe. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो इसे यूजफुल पा सकते हैं. सो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर एंड चर्न डेटा टुडे. चलो शुरू करते हैं. सो I'll take you to this Power BI. So till yesterday we were working on this kind of a report, and that was the part that we were working on. I've just made some changes. I have tried to give it more like a calendar view and then year and month going below it, right? So it is showing you about the month that it is selected. So this is the same thing that we'll be doing this is the same report that we'll be progressing on to create the manipulating dates. So कल हमने एग्जाम्पल बनाया था. कल इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से देख रहे थे. मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करा और थोड़ा सा चेंज करा था पहले, लेकिन देन आई थॉट कि इसको कैलेंडर व्यू दिया जाए, कैलेंडर लुक दिया जाए, तो मैंने इस तरह से बनाने की सोची है इसको. और अभी मैंने बनाया है थोड़ा बहुत. लेट्स सी हाउ दिस प्रोग्रेसेस. तो ये एग्जाम्पल हमने कल देखा था. आज हम देखेंगे मैनिपुलेटिंग डेटा वाला. और आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर इन पे बुकमार्क भी बना दिए हैं सो दैट हम इजीली एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकें. तो आज के एग्जाम्पल में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि हम कैसे डेट्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है जहां पर हम जो हमारी डेट है, जो सिलेक्टेड डेट है, उसके अंदर हमने 10 दिन ऐड करे. तो वी आर सेइंग डेज dot add days, and we are adding 10 days into the date, and then we are saving it in a new column, right? Similarly, this is for adding days. The next one is for adding months. So if you put in -1 like I'm showing you here, for the add month you write on minus, so it will take you 1 month back. That is, if today is January, it will be taking you to the last year's December. Similarly, I can do that action for add quarters, so I'm adding 2 quarters to it, and then I'm adding 1 year to it. This is just for designing that I've done, so I'll not go into that, but these were the some methods that we were working on. So add days, add months, add quarter, add year, right? Now you can see here, whatever date I select, suppose I select the 10th of December 2025, it 10 days before or 10 days after 10 December 2025 is 20 December 2025. Same day last month was 10 November 2025. When I plus 2 quarters, it goes after 6 months, so it goes to 10th June 2026. And when I add 1 year, it goes to 10 December 2026. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डेट सिलेक्ट करी 10 दिसंबर 2025. तो जब मैंने उसमें 10 दिन ऐड करे तो वो चला गया 20 दिसंबर 2025 पर. जब मैंने उसको लास्ट मंथ में डाला तो वो नवंबर 10th 2025 दिखाया उसने, और जब मैंने +2 क्वार्टर्स करा तो वो 6 महीने आगे ले गया मुझे जून में. सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे कि वो 1 साल
आगे ले गया मुझे। मैं जैसे जैसे डेट चेंज करता हूँ, अगर मैं जनवरी में जाता हूँ और जनवरी में जाके कोई भी डेट को सिलेक्ट करता हूँ, 8 जनवरी, 10 दिन बाद 18, एक महीने पहले 8 दिसंबर 2024 का, 2 क्वार्टर आगे मतलब 6 महीने के बाद जुलाई 8, और 1 साल बाद जनवरी 8 2026। तो ये चीजें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। So these are the things that you can apply. Now let's see the usage. What usage or use cases you would be using it in? Expiry dates, contract renewal, and forecasting if you're forecasting anything there. So these are the things that you can use it. Yesterday what we did was in the extract date, और वहाँ पर हम we were talking about the use cases like group by year if you want to do that, month, quarter, weekday, weekend, analysis, or physical calendar. If any of those things you have to do, that is where you'll be using the extracting date that we are extracting as year, month, month name that we were doing yesterday. And today's is where you want to use expiry date. For example, if the expiry is after 2 years, 1 year, 3 years, contract renewal, whenever you want to renew the contract, and the forecasting. सो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यूज केसेस, अगर आप मैनिपुलेटिंग डेट्स के यूज केसेस की बात करें तो यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट्स की बात कर रहे हैं कि आज हमने प्रोडक्ट खरीदा, वो 1 साल में एक्सपायर होगा, 2 साल में एक्सपायर होगा, हम उसकी डेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मतलब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसको रिन्यू कराना है, हम डेट ना सब भूल जाएं, इसके लिए रिन्यूअल करा सकते हैं। फोरकास्टिंग मतलब हम आगे देख सकते हैं कि कौन सी चीज कब होगी। तो ये चीजें हमने कवर करी आज। आई जस्ट शो यू अगेन what we have done is we have seen how to add and subtract days, how to add and subtract months, and how to add and subtract years. We also saw that how we can add and subtract your quarters. And then what you can do is you can combine date manipulation with other calculations as well. Tips for the day is always use date only column to avoid time issues. You can combine today and date time local now with manipulation for refresh aware calculation, and then what you can do is you can test calculation with sample dates first. So जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आज हमने देखा मैनिपुलेशन ऑफ डेट्स कैसे हम कर सकते हैं, जिसमें हमने बोला कि ऐड और सब्ट्रैक्ट डेज कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट मंथ कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट ईयर कर सकते हैं, और इसे हम कंबाइन कर सकते हैं डेट मैनिपुलेशन के अंदर किसी और फॉर्मूला के साथ और कैलकुलेशन के साथ। अब मैं टिप्स की बात करूंगा तो टिप्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस मैनिपुलेशन के लिए डेट का ज़्यादातर इस्तेमाल करें। डेट टाइम इशू दे सकता है आपको। आप इसके अंदर कंबाइन कर सकते हैं डेट टू डे या फिर डेट टाइम लोकल नाउ, जिसमें फ़र्क ये है कि आपका लोकल टाइम लेगा विद द मैनिपुलेशन फॉर रिफ्रेश अवेयर कैलकुलेशन। जब आपको चाहिए कि आप जब रिफ्रेश कर रहे हो तो आप उस डेट पे जा सको करंट वाली, तब उसके अंदर आपको ज़रूरत आएगी। टेस्ट कैलकुलेशन विद सैम्पल डेट्स फर्स्ट। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो भी आपके पास डेट्स हैं, राइट, तो आप सबसे पहले उनके साथ टेस्ट करो इन सबको करने के बाद जिनके अंदर आपके पास वैल्यूज हैं और जिनको आपको पता है कि उन डेट्स के की तरह से ये कैलकुलेशन इस तरह से आएगी। सो व्हाट ये कहना चाह रहा है, बेसिकली बताना चाह रहा है कि आपको टेस्टिंग मस्ट है, क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको डेटा सही ना मिले। अगर आपको ये स्टेप यूजफुल लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी डेट मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। सो दैट इज ऑल दैट I had to cover today. Data and Skill Explorers, you have just moved one step forward in your learning journey. बस आज के इस वीडियो का ज्ञान का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन याद रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाएगी, तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक एंड शेयर इट, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया लेसन मिस ना करें। आई एम योर स्किल एंड डेटा एक्सप्लोरर पेयर, a bit forward daily, Tivke Learner, a bit forward daily. See you in the next video. Tab tak, keep exploring, keep churning. Thank you. Bye.